أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 73 اور 74 اور 75. وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، قالا جب کہا، ابراہیم نے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا. کس سے کہا؟ لِأَبِيهِ، اپنے والد اور فادر سے. آزر، اس کا نام کیا تھا؟ آزر. اپنے فادر آزر سے کہا، اتتخذو، کیا تم بناتے ہو، اصنامن، بتوں کو، آئیڈلز کو، مورتیوں کو، آلہہ، معبود اور خدا، گاڈز بناتے ہو. اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم مورتیوں کو اپنا بھگوان اور خدا اور گاڈ بناتے ہو. انی، بے شک میں، اراکا، تم کو دیکھ رہا ہوں، وقومکا، اور تمہاری قوم کو، تمہاری کمیونٹی کو، فی ضلال، گمراہی میں، یعنی صحیح راستے پر نہیں ہو تم. اور کیسی گمراہی؟ مبین، کھلی ہوئی، اوپن، آبویس. میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، نُری، ہم دکھاتے تھے، ابراہیم کو کیا دکھاتے تھے؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور کنگڈم. وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، پکا یقین کرنے والوں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، and mention, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Abraham said to his father Azar, do you take idols as gods? Indeed, I see you and your people to be in manifest error. And thus did we show Abraham the kingdom of heavens and earth, and that he might become certain in faith. اب یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہا، پروف، ثبوت کہ وہ اللہ ایک ہے. اب بیچ میں اللہ نے تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور اگزامپل دی کہ کس طرح سے شرک کے اندھیروں میں پیدا ہونے والا، شرک کے ماحول میں پیدا ہونے والا ایک انسان جب وہ اپنی آنکھ، اپنی عقل کھول کر کے دیکھتا ہے تو اسے بھی اس اندھیرے میں ایک خدا کی روشنی نظر آ جاتی. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ اسے دکھانا چاہتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ کیا؟ ہم لوگ بولتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، سارے ماحول ویسے ہی ہے، ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے. یہاں سب سے پہلا ان کا جو ٹارگٹ بنا وہ کون تھا؟ اپنا گھر، کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، پہلے اسے بچانا ہے مجھے.
تو करेज और हिम्मत देखिए, हम लोग बोलते हैं नहीं उन्होंने बड़े हैं, उनको क्या बोलने जाएंगे, उन्होंने हमारे बाप हैं, उन्होंने हमारे चचा हैं, उन्हें हमारी सोसाइटी के बड़े आदमी हैं, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं? अपने बाप से कैसे बात कर रहे हैं? इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, तुम भी गलत रास्ते पर हो और तुम्हारी पूरी कौम भी क्या है, गलत रास्ते पर। ये हिम्मत और ये करेज थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको क्या बनाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहिम को अपना क्लोज फ्रेंड बनाया। जो लोगों से डरे, फलां आदमी है उनसे हम कैसे बात करेंगे, वो तो एमएलए है, वो तो एमपी है। ये आजर के बारे में आता है कि ये अपने शहर जो उर था, जो आज टर्की में है, उर्फा, आज टर्की में वो शहर है, वहाँ पैदा हुए। वहाँ के टॉप लोगों में इसका शुमार होता था, इनके बाप का। और ख़ास तौर से जो रिलीजियस लीडरशिप थी वो इनके बाप के हाथ में थी। उसके बावजूद भी इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैसेज उसे दिया। पहली बात ये, पहला लेसन कि अगर गलती कोई भी करे, छोटा हो या बड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आइडियल और नमूना क्या कहता है कि उसे बड़ा कह करके हम छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़े तो अल्लाह ताला हमें पकड़ लेगा कि मुझसे भी बड़ा था क्या वो, मेरा पैगाम तुम तक पहुंचा, वो तुम्हारा बॉस था, वो तुम्हारा लीडर था, कुछ भी था, गलत था तो उसे गलत बोलना था तुम्हें, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, एक ही चीज है, कुछ लोग उसी के जरिए से गुमराह हो जाते हैं। क्यों? पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, देखने का तरीका गलत है, और कुछ लोग उसी को देख करके सही रास्ता पा जाते हैं। जस्ट देखिए, एक छुरी है, छुरी से कुछ लोग गर्दन काट लेते हैं। एक गन है, कुछ लोग गोली मार करके सुसाइड कर लेते हैं। और वही गन है जो अपनी जान बचाने का, हिफाजत का भी जरिया बन जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सिस्टम, ये कायनात, ये यूनिवर्स है, इसमें गौर किया, कैसे सूरज निकलता है फिर डूब जाता है, चांद निकलता है रात में वो डूब जाता है, सितारे, और इसी पर गौर करके वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंच गए कि नहीं, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं हो सकता, और ये खुद जो है गॉड और खुदा नहीं हो सकते, जिनको खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। वही चीज जिनको उनकी कौम पूजती थी, नहीं, खुदा और माबूद बना के बैठी थी, वही चीज के जरिए से, उन्हीं चीजों के जरिए से, उन्हीं निशानियों के जरिए से वो कहाँ पहुंच गए, अल्लाह ताला तक पहुंचे। ये क्यों? ये डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान में कहा कि कौन लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है, अल्लज़ीना अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, कितनी प्यारी आयत है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते रहते हैं, क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े रहते हैं तब भी, बैठे रहते हैं तब भी, वाला जुनूबिहिम, और लेटे रहते हैं तब भी। किसको याद करते हैं? अल्लाह ताला को। वयतफक्करूना, और गौर करते हैं, सोचते हैं, रीजनिंग किस चीज में, फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या हिकमत है इसके पीछे, क्या बगैर किसी रीजन के बना दिया? गौर करते हैं, और उसके बाद उस गौर और फिक्र और सोच का नतीजा क्या होता है? कहते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। कहाँ पहुंच जाते हैं वो? यानी अल्लाह की साइंस और उसकी निशानियां देखकर कहाँ पहुंच जाते हैं? अल्लाह ताला तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, आपने इस पूरे सिस्टम को बेकार और फालतू और विदाउट किसी रीजन के पैदा नहीं किया। सुबहानका, आपकी जात पाक है कि कोई फालतू काम करे। फ़क़िना अज़ाबन नार, तो आप हमें आग की और जहन्नम की अजाब से, सजा से बचा दी। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है दोनों आयतों का?
नंबर 1, गलती कोई भी करे उसे हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है, अच्छे अंदाज में ही बताना। और नंबर 2 ये कि अल्लाह की हर चीज दुनिया में जो दिख रही है वो अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है, अगर इंसान को देखने के लिए आंख और खुला हुआ दिल हो तो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब करे।